भागते रहे अपनों के और दूसरों के सपने पूरे करने। जिंदगी भर भागते रहे अपनों के और दूसरों के सपने पूरे करने। अब खुद के लिए जीने का समय है, कुछ छूटे सपने पूरे करने। 60 के बाद जिंदगी की नई शुरुआत है। 60 के बाद जिंदगी की नई शुरुआत है। नए सपने देखो कि ये खुद से मुलाकात है। Hello and welcome back, friends, to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. The idea behind starting this Aging Gracefully channel emerged from a deep observation of how life changes after retirement or, say, turning 58 or 60. These years are often marked by flood of unsolicited health advisories. That is what I observe. While the importance of maintaining the positive and purposeful mindset is largely overlooked, जो देखना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, वो तो अलग ही लाइन पे जा रहे हैं. The moment person reaches 58 or 60 or opts for a retirement, unsolicited health advisors are many, and we receive many health advisors. Though I do not say that that is wrong, but I think that the mindset is the prime concern. So, what should be the prime concern? So, the people who were active, engaged, and contributing till the late 50s suddenly find themselves labeled as redundant or jobless. है ना, ये टैगलाइन है. अभी तुम्हारे पास क्या काम है, तुम क्या करते हो. आमतौर पे भी रिटायरमेंट होने के बाद एक सवाल आता है, अब क्या करते हो. ये सवाल ही गलत है. क्या करते हो, क्या अभी तो किया ना, अब आराम करते हैं, अब खुद की लाइफ जीते हैं. सो these questions should not be asked to a retired person, but life is like that. So this misplaced perception not only undermines your self-worth but also prevents you from exploring the vast potential of this new phase of life. ये सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल जब पूछा जाता है तो एक ब्लैंक पॉज होता है, मतलब बहुत बड़ा पॉज लगता है. वो अब क्या करते हो, क्या करता हूं. Now you see, if you are not doing any job, that doesn't mean you are not busy. ये कंसेप्ट ही गलत है. अब एक रिटायर्ड आदमी को कैसे पूछ सकते हो अब तुम लोग क्या कर रहे हो. Now that is a very crude question, or I should say rude question. It should be अब मजे में ले रहे हो, you are enjoying the life now, अच्छा है. Now that should be the communication. So equally significant is the newfound availability of time. So वो जो 8 to 10 hours once spent in demanding organizational roles are now available for self growth. ये सोच ही नहीं है. अभी तक जिसके लिए भाग रहे थे वो बिजनेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, खुद का लिए कुछ कर, अपने खुद का कोई एंटिटी होगी, उसके लिए काम कर. नाउ यू आर पास्ड ऑन द बैटन. दैट 8 to 10 hours which you were spending for that particular organization, for that particular business are now rightly available to you. ये हम भूल गए. बस एक सवाल, आप क्या करते हो, इस सवाल से. So many treat this time as void, क्योंकि अभी क्या करना है, सवाल कैसे बिता है समय. उस वक्त तो था सुबह उठो भागो, अभी तो कुछ नहीं, तो इट इज अ वैक्यूम, अ void. So this, instead of using it as a problematic situation, why not consider it meaningfully. So with the people who are in a question mark, abhi kya, they dwell on the past and get caught in the trap of unproductive activities like excessive social media usage, etc. है ना. तो जैसे ही रिटायर हो गए तो कई ग्रुप्स फॉर्म हो गए, अब उसमें चर्चाएं चल रही है उस सब्जेक्ट्स में जिसके आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि आप अपना टाइम, valuable time, instead of utilizing for yourself, you're wasting it, isn't it?
अभी तक तो यूटिलाइज कर रहे थे, तो किसी और ने आपके स्किल्स यूटिलाइज कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई, और आप, दैट इज द क्वेश्चन. सो दिस टाइम you have to consider it as a most worth full time available to yourself. So the Aging Gracefully channel aims to challenge these notions by encouraging you all or individuals to rediscover yourselves, channelize your energy into productive pursuits, and embrace the stage of life as an opportunity for growth, purpose, and fulfillment. Because life after 60 is for living, not for mere surviving. Because जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. क्योंकि I have been stating this after observing all these things. I thought I should take efforts. एक कोशिश करनी चाहिए कि माइंड सेट टोटली पॉजिटिव टुवर्ड्स योर गोल्स. सपने अभी तक आपने दूसरों के पूरे किए, कभी भाई था, कभी बहन थी, कभी फैमिली थी, कभी वाइफ थी, कभी हस्बैंड था, कभी पेरेंट्स थे, कभी चिल्ड्रन थे. उनको अपने अपने पैरों पे खड़े करने में आपका बहुमोल टाइम आपने दे दिया. आपके सपने और आपकी सोच, अब वो तो इंडिपेंडेंट हो गए. नाउ डोंट इंटरवीन इन देयर लाइफ, बिकॉज इट वाज यू हु इज वन ऑफ द, और यू आर द पिवोटल पर्सन कि उनके सपने पूरे करने में आपकी बहुत अहम भूमिका थी. तो अभी जब वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके, उनकी लाइफ में मत जाइए. अपनी लाइफ जीने के लिए ये 8-10 घंटा आपके लिए है, ये सोच चाहिए. दैट इज व्हाट आई थॉट. बिकॉज इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द पास्ट, अभी क्या जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो लोग कमाल करते, माने क्या सार्कास्टिक रिमार्क है वो कि अरे कुछ नहीं करो तो, अरे तब मैं था, तब मैं इतना काम करता था, तब ऐसा चल रहा था. तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो खुद के लिए करो. नथिंग लाइक दैट. प्रोग्रेस और प्रोडक्टिविटी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एज. प्रोडक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एवरीवन हैज टू. आप 25 साल की उम्र के लड़की की तरह भाग नहीं सकोगे, ये सच्चाई है. और नहीं भी चाहिए, भागना भी नहीं चाहिए. आप बहुत भाग चुके. अब we have got the brains, we have got the knowledge, we have got the experience that should play the role. और ये खुद के लिए करो. So that is why this channel. So एजिंग ग्रेसफुली चैनल में एक कोशिश है कि ये जो समय की अधिकता है, इसे बेईमानी गतिविधियों में मत गंवाइए. मतलब जस्ट डू नॉट वेस्ट योर सिंपल टाइम और अवेलेबल टाइम इनटू रिडंडेंट कम्युनिकेशंस जो आपके लाइफ के लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है. देखिए, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. रिटायर होने के बाद कई ऐसे, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? We are just trying to keep ourselves busy. Are we busy? No. जिसे हम एक वर्ड देते हैं टाइम पास, द वर्स्ट ऑफ द वर्ड्स, टाइम पास. So you are so rich that you have the time to pass for. Exactly that is what I wish to address, friends. Exactly that is what I wish that we all should understand, that this is time which is available at our end to improve on ourselves, to reach our more goals. जो छूटे थे वो सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए. ना कि ये सोचते हैं अभी उम्र क्या है, लोग क्या बोलेंगे. अरे ये तो तकियानुसी बातें जो सालों से चली आ रही है. क्योंकि तब सोच ही ऐसी थी. एक मैकेनिकल वर्कर की तरह आदमी काम करता था, अब रिटायर हो गया उसका. इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना. बिकॉज द पीपल व्हेन दे वर इंडिपेंडेंट दे फोर्सफुली बिकेम डिपेंडेंट एंड नाउ दे आर क्राइंग फॉर द फेट. कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने अपने सारा सब कुछ अपने बच्चों में, अपने वाइफ को, हस्बैंड को सब दे दिया. अब वो डिपेंडेंट बन गए. नाउ दे आर फेसिंग टू मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस दैट इज टेकिंग टोल ऑफ देयर लाइफ. और हर वक्त एक सवाल उनके दिमाग में आता है,
सब कुछ मैंने किया था, तो मुझे ये फेस करना क्यों पड़ रहा है? तो फिर हम किसको दोष देते हैं? भगवान, द इजिएस्ट वे, क्योंकि वो तो रिवर्ट करता ही नहीं है। लेकिन भगवान आपको कैसे मिलेगा? यू जस्ट टेल मी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सुबह होते तो आपको मंदिर जाना चाहिए, बिकॉज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपका फेथ हो उसमें जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। नथिंग लाइक दैट। वहां पे कहीं गाली गलौच नहीं है, नो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, कोई झगड़ा नहीं, शांत वातावरण, पॉजिटिव वाइब्स। उससे अच्छी जगह है ही नहीं। तो हम जाके वहां रोते हैं, मैंने जिंदगी भर इतना सब पूछा, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? अब भगवान मान लो, इमेजिन दैट भगवान कम्स टू यू और वो पूछता है, भाई मेरे, तुम्हें मैंने दिमाग दिया था, दो आंखें दी थी, दो हाथ दिए थे, दो पैर दिए थे, तो तुमने वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Have you got the answer? That is what it is about. That 8 to 10 hours which are now available for yourself, now you are again wasting in the redundant communication on some groups on the topics which are not at all concerned with your life. Why waste it? Why not develop yourself? You are having tremendous skills. रिफ्लेक्ट करके देखो, क्या थे जब आप नौकरी, बिजनेस चालू किए थे, तब आप क्या थे, और अब आप कौन से मुकाम पे हो? बेहतरीन है मतलब ये आपने किया हुआ है, ये आपकी स्किल्स है, बस उसे डेवलप करना है अभी। Why not that attitude? That is the question. Why run away from our things when we are having everything with us? भगवान आपको कैसे मिलेगा? वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा ना, तो क्रिएट हो गई ना, समय मिल गया ना आपको 10 घंटा रोज का। सो डोंट यूज द वर्ड टाइम पास। There are rich people who use this type of words. तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास? यू सो रिच, तुम्हारे पास समय है पास करने के लिए? अरे बाप रे, ये कंसर्न होनी चाहिए। डू नॉट रिलेट योर सक्सेस, योर अचीवमेंट्स, योर गोल्स टू योर एज। एज हैज गॉट नथिंग टू डू। जस्ट लुक अराउंड इन द वर्ल्ड। सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया पे एक बार सिर्फ इंक्वायर कीजिए, हाउ मेनी पीपल वर सक्सेसफुल आफ्टर एज ऑफ 60? यू विल गेट सीरीज ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल। अब इन लोगों ने क्या किया? दे डिडंट गिव अप देयर इंडिपेंडेंट बीइंग। सो दैट इज व्हाट वी शुड बी अबाउट फ्रेंड्स। ये जो हेल्थ एडवाइजरी, दैट इज अ नेसेसिटी, आई डू एग्री। हमें अकॉर्डिंग टू आवर एज, आवर एलिमेंट्स, जो इतने सालों से हमने इग्नोर करने की वजह से एक साथ लेके घूम रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो सही है। लेकिन अनसॉलिसिटेड एडवाइजर्स सुबह उठते ही पहले चालू हो जाते हैं, सुबह चलने जाओ, तुम इतना ही खाओ, इतना पानी मत पियो, सुबह चाय मत पियो, रात को ये मत करो। अरे क्या मत करो? 59.9 तक तो सब कुछ कर रहा था, तब हेल्दी था, 60 होते ही सब रिस्ट्रिक्शंस आ गए। नहीं फ्रेंड्स, इट इज नॉट दैट वे, इट इज द वे एज यू थिंक। Hence, unsolicited health advisory should be stopped immediately. नहीं चाहिए बाबा। मेरा एक हेल्थ एडवाइजर है, डॉक्टर है, जिसके पास मैं हमेशा, यू शुड हैव अ ईयरली चेकअप। अगर ज्यादा है तो हाफ ईयरली चेकअप कीजिए। यू शुड मॉनिटर योर हेल्थ, इट इज अ नेसेसिटी। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सो व्हाई नॉट? यू सी, इवन दो ब्लड सैंपल्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम, कलेक्टेड फ्रॉम होम, तो कहां जाना है आपको? कुछ नहीं करना है, फोन करना है। सो व्हेन दिस इज अवेलेबल, यू शुड फॉलो योर रूटीन। आपका एक मेडिकल एडवाइजर है जिसको आपकी सारी कथाएं मालूम है, व्हाट यू आर, व्हाट आर द एलिमेंट्स यू आर फेसिंग, हाउ यू आर मेडिकेटेड फॉर, ये सब उसको पता है। तो यू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। व्हाई अनसॉलिसिटेड एडवाइस? वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, तुमने ये करना चाहिए, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स रात को मत खाओ, वेजिटेबल्स शाम को मत खाओ, सुबह एक बार ही खाना खाओ, रात को एक बार खाना खाओ।
अरे अभी तक तो मैं बैलेंस सब कर रहा था, अब ये प्रेशर आ गया, क्योंकि समय ज्यादा है, सो टाइम पास हो रहा है. एंड व्हाट इज दैट क्रिएटिंग? स्ट्रेस. Because though those advisories may be very well stated or very well studied also, but are they necessarily applicable to your life is the question. And I would suggest you better believe in your medical practitioner. आपके डॉक्टर पे बिलीव रखिए और उससे बात कीजिए. He is the best person to guide you on the health advisories and follow that. To close all these other advisories. नहीं चाहिए, बोल देना नहीं नहीं अभी मत बताओ कुछ मुझे, आई एम डूइंग माई थिंग्स. लेकिन इस पे एक जरूर कहूंगा जो मैं हमेशा कहता आया हूं, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग पे वॉक पे जाओ. नहीं मैं दिन भर चलता ही रहता हूं, वो अलग बात है, वो मत बताइए. यू शुड नॉट फॉलो दैट. सुबह के टाइम में उठने के बाद यू जस्ट डू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर 15 to 20 minutes एंड गो फॉर अ वॉक टू 20 to 30 minutes सुबह के टाइम में बस. इट कीप्स यू एनर्जाइज. करके देखिए फ्रेंड्स, जरूर एनर्जाइज. सुबह सुबह मतलब सुबह एट 5 o'clock और 6 o'clock. इट शुड बी दैट मॉर्निंग. अरे अभी तक तो कर रहे थे ना, सुबह 5 बजे उठ के भाग ही रहे थे ना किसी और के लिए, किसी और के सपने पूरे कर दिए, तो अभी अपने सपने के लिए जियो. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो एंड ये सब आज का टॉपिक है फ्रेंड्स. आज का टॉपिक है गेट रिफायर्ड नॉट रिटायर्ड. दिल से रिटायरमेंट, हाँ ये शब्द निकाल दीजिए. रिफायर हो जाओ. यू आर हैविंग द टाइम. नाउ यूटिलाइज इट फॉर योरसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट और रिमेन इंडिपेंडेंट. क्यों डिपेंडेंट बनोगे किसी पे, जब इतने साल खुद के बल पे इतना सब कुछ लोगों दूसरों के सपने पूरे करने में आपने सारी जिंदगी गंवाई नहीं कहूंगा इसको, रॉन्ग वर्ड है. सारी जिंदगी आपने वही तो किया, तो अभी अपने सपने पूरे करने में आपको इस पास समय नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हो. डोंट डू दैट फ्रेंड्स. सो गेट रिफायर्ड नॉट रिटायर्ड. सो इट इज नेसेसरी बिकॉज रिटायरमेंट ब्रिंग्स द एक्टिविटी जो है वो सेंस ऑफ फाइनलिटी आता है. मतलब अभी हो गया रिटायर, अभी क्या करना है, हो गया सब कुछ. नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हो गई, ये आपको सोचना है. रिफायर हो जाओ. अभी तक किसी और के सपने पूरे करने में अपनी जिंदगी बिताई, ओके, अब रिटायर हो चुके, नाउ अपने सपने पूरे करने हैं. दैट शुड बी द एटीट्यूड. So finality doesn't mean the end of productivity or purpose. That is what you should understand. Retirement is not finality. It is not the end of purpose. जीना है, सरवाइव नहीं करना है. अब क्या करो, जिंदगी है, भगवान ने दी है, तो जब वो उठाएगा तब. ये सब डायलॉग्स जो है ना वो बोलना बंद करो. दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स. एक सवाल खुद को पूछो, एक दिन आपको भगवान के सामने जाना ही है और वो भी आपको पूछने वाला है, जब मैंने तुम्हें सब कुछ दिया तो तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया. इसका जवाब अगर है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है. सो फ्रेंड्स, when people retire, they often lose their structure, identity and motivation that work once provided them for. जब काम था तो भाग रहे थे, कोई पर्पस था, अरे मुझे टारगेट अचीव करना है, अरे मुझे ये करते थे, हम सब लोग करते हैं. भले वो बिजनेस हो, भले वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल जॉब हो या मल्टीनेशनल जॉब हो, जो भी हो, सुबह उठ के भाग रहे थे. किसका सपना पूरा कर रहे थे? वो ऑर्गेनाइजेशन का. साथ में हम, मैं भी तो ग्रो हो गए ना. और लेकिन रिटायर हो गए ना, ऑर्गेनाइजेशन रुकी क्या? योर चेयर इज नॉट वेकेंट नाउ, समवन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एंड इट इज रनिंग. दे हैव फॉरगॉटन यू. Now that is what you should also do. Let the past be past. जाने दो past. We are not interested in the past. So getting refired means reigniting your passion, staying active and finding new goals. अरे इस उम्र में गोल, अरे हाँ मैंने कहा ना, प्रोग्रेस
has got nothing to do with age. You have to decide your goals. You have to find your purpose for life. You have to be independent. And for that, you have to be active. सो फर्स्ट मैंने कहा कि जो अनसॉलिसिटेड हेल्थ एडवाइजरी है उसे बंद कर दीजिए. एक बिलीफ रखिए, आपका एक डॉक्टर है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर आप बिलीव करते हो उसके उसके पास आपको जाना है. टेक हिज एडवाइस. साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा लीजिए. ही विल टेल यू व्हाट टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी डन. मॉनिटर इट करेक्टली. एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउअडेज. एवरी मेडिसिन इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. लीजिए, एक्सेप्ट इट. अब इतने सालों इग्नोर करके जो एलिमेंट्स लेके आए हो तो छोड़ थोड़ी दोगे. अब क्या करे, भगवान ने ऐसे ही किया. भगवान ने कुछ नहीं किया है. भगवान ऊपर देख के मजा देख रहा है. He is one of the best creations. Human being is again crying and going back to him. That is what he is laughing at. So get refired. Active रखिए अपने आप को. It is essential to avoid stagnation, maintain mental and emotional well-being. किसको अच्छा नहीं लगता है रिटायरमेंट के बाद सब घर वाले बोलेंगे अभी आप बैठ जाओ, बहुत काम कर लिया, एक कुर्सी पे बैठ जाओ. शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में उनको भी तकलीफ है. अभी अभी बताओ, इसमें हमारे बीच में बताना, वी आर बिजी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है. ये पहला वाला पार्ट ठीक है, दूसरा वाला पार्ट हर्टिंग हो गया. तुम्हारे पास अभी कुछ काम नहीं है, बैठे रहो वहां पर कुर्सी में बैठे रहो. Then you will become a baggage, burden for yourself and hence for your near and dear ones. Instead of that, be active mentally also. So life after retirement can be the new beginning. That is what you have to think of. Full of opportunity to rediscover yourself. कई स्किल्स है आपके पास, कई चीजें हैं जो इतने सारे सालों में आपसे छूट गई, जानबूझकर नहीं, लेकिन कार्य ऐसे थे कि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाए तो अपने सपने छूटते चले गए. बस रिकॉल कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए, रिवाइटलाइज हो जाइए, रिफायर हो जाइए. So start by identifying the activities or hobbies you are always wanted to pursue. मैं गाना सीखना चाहता था, सीख लो. मैं ड्राइंग से करना चाहता था, कर लो. मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहता था, ट्रैवल करना चाहता था, करो. अभी कौन रोक रहा है? प्लान इट आउट, चॉक इट आउट एंड वर्क इट आउट. दैट शुड बी द वे. अभी क्या है? अभी आपका समय है, पूरा समय आप ही का है. Build a routine that keeps you engaged physically, mentally and socially. ये आपने अपने आप को रूटीन बनाना है. मैंने कहा ना कि आप सुबह जब वॉकिंग के लिए चले जाते हो, किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी भी, देयर आर ऑलवेज, यू विल फाइंड मेनी ऑफ द ग्रुप्स. एक योगा ग्रुप रहेगा, एक लाफिंग ग्रुप रहेगा, एक जनरल ग्रुप रहेगा जहां बैठ के वो बातें करते हैं इधर उधर की. इट इज अ नेसेसिटी. Because they are the force, you are the force. मैं कहता हूं you are a deadly combination of knowledge and experience. तो क्यों ना इसे हम शेयर करें? Give back to the society. Let them also learn from whatever skills you are having. और ऐसे कई सोशल ग्रुप्स हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं. Join them. Sustaining this requires a growth mindset. Be curious, take small consistent steps and surround yourself with positive influences. ये चालू रखने के लिए खुद के माइंड को ये लगना चाहिए मुझे ये करना है. अगर इस सोच में जाओगे, क्या करूं, अभी भगवान ने जिंदगी दी है, 60 में रिटायरमेंट हो गया, वो देश अच्छा है वहां पे लेट रिटायरमेंट है, भैया उसमें पॉपुलेशन ही नहीं है. और दूसरों के बारे में सोचने से आपका दुख दर्द या आपको सुख सर कहां से बदलने वाला है? वो तो आप खुद ही करने वाले हो. माइंडसेट, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेंज. सो एक्सेप्ट इट, बट एक्सेप्ट इट दैट यू आर हैविंग द स्किल्स. रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी जर्नी पे, लाइफ की जर्नी पे, तो आप खुद को समझ जाओगे, अरे हाँ यार, मैं कहां से कहां तक आ गया. दैट इज व्हाट यू आर एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी डेवलप्ड. इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिपेंडेंसी.
or should not be. So you have to adapt to the new experiences so that you keep your fire in yourself alive. नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए नए लोग आते हैं, नई सोच आती है. रिडंडेंट कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया से तो अच्छा है. यू आर लर्निंग समथिंग, improving on yourself, and also giving back with your experience and knowledge. It is an addition. That is what you are. So the golden years provide luxury of time, unencumbered professional obligations. ये तो है. That is what golden years it is said for. Your time. एक प्रोफेशनल एडवाइजरी का आप अपने आप में मेंटोर बन जाते हो. So it can be a transformative phase if used wisely. निगेटिव मोड में जाके सोचोगे तो हमेशा आप बैगेज बनते जाओगे. मुझे ना कैबेज, बैगेज, एक जगह पे बैठ गया, धीरे धीरे सब एलिमेंट्स उसके पास आ गए. अब वो सिर्फ यही कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बिकॉज यू नोस भगवान का रिवर्ट ही नहीं कर रहा है. सो इतना आसान है किसी को ब्लेम करना. बट व्हाट इज द रिजल्ट? The ailments are not getting improved because he is not improving on himself. He preferred to sit in a chair to become a cabbage baggage. ये प्रॉब्लम है. So staying active through meaningful activities is a necessity of life, friends. It boosts mental sharpness. Physical health एकदम इंटैक्ट रहती है ना. कोई जरूरत नहीं है कि आप रोज उठ के फोन करके सबको बातें करते रहो. But when you are in the social activities, you yourself have engulfed yourself into helping others. Activities like helping others or giving back to the society. तो अपने आप ही बातें होती है. रिडंडेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है आपकी. नाउ यू आर हैप्पी टू गिव बैक your knowledge and experience to others, whereby they are being guided to explore the new things at a faster rate. क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज साथ में आ गया तो जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए वो उनको फेस करने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज नाउ यू आर द पाथ फाइंडर और योर पाथ शोर, या फिर आप एक गाइडलाइट हो. तो दैट इज व्हाट यू आर, अ मेंटर. अपने विचारों को दे रहे हो, लोग आपके विचारों को सुन के अगर बदल रहे हैं, दैट इज व्हाट यू आर. सो रिटायरमेंट इज नॉट द एंड, फ्रेंड्स. इट इज अ ट्रांजिशन इनटू न्यू चैप्टर. गेटिंग रिफायर्ड allows you to live with purpose, enthusiasm and joy. So don't consider yourself to be retired. Refire yourself. Live the life than mere surviving. Because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. इसीलिए मैंने कहा जिंदगी भर भागते रहे अपनों के और दूसरों के सपने पूरे करने. जिंदगी भर भागते रहे अपनों के और दूसरों के सपने पूरे करने. अब खुद के लिए जीने का समय है. कुछ छूटे सपने अब पूरे करने हैं. 60 के बाद जिंदगी की नई शुरुआत है. 60 के बाद जिंदगी की नई शुरुआत है. सपने देखो, ये खुद से मुलाकात है. Bye bye, friends. We meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, enjoy the life. Enjoy the life. It is one-time activity, friends. Bye bye. Do enjoy.